you everybody. Honorable Justice Salgaonkar sir, Principal Srivijaya madam, my colleague Professor Thakur madam, my dear students, I am here to give some of the instructions as far as these students are concerned. So basically, we are all well versed with the legal literacy camps. The credit goes to Principal Srivijaya madam for organizing such a wonderful and novel competition. With the intention that we all have been taking up literacy programs at different levels in our 3-year or 5-year course. But this is an opportunity for you to present your skills. As of now, we have been taking up so many different skills as in advocacy. But this is something different. We will have to have some sort of skills whereby we can reach the downtrodden and the lowest man who needs the justice. As Justice Salgaonkar was just now saying, that our job as a citizen of India or as a student of law is to take that person at the doorsteps of the justice. That is the thing which is expected of literacy. Most of the students are aware about these facts at later stage in their life, but this is a good opportunity for us to get well versed with these techniques, and I am confident that you will be moving ahead. Although we have decided 15 minutes time, after 15 minutes we will give a bell. And we will give a grace of maybe 2, 3, 5 minutes, whichever way the judges say. 2 minutes. 2 minutes grace will be given. Then again after 2 minutes, one more bell will ring, and one more grace of 2 minutes will be given. And after 19 minutes, I suppose we should stop. Okay, again all the participants will agree. 15, the bell rings. Then again after rings, that is the end of it. Then you will have to stop after 19 minutes. So you will have to make the program in such a way, maybe street programs are there, so it becomes difficult. And your time will start when the judges will raise the hand, so that time you will start the time. So you should not say that we have invested our time in the initial stages and all those things. When you are ready, you can tell us by raising one of your group time, and we'll also indicate that this much of it. There are 3 prizes. Good thing about this program is that 3 prizes are there which are individual prizes. That means amongst all of you, you have been given badges. So judges will decide numbers because we are not aware about your distinct identities. That's good thing. So as per your number noted over there, we'll be making the marking and all those things. So 3 individual prizes are there. Plus 3 prizes for the groups are also there. So I am confident that most of you will enjoy this program, and I wish best luck for all of you. Thank you. Ready for the program? आधे देशों की तरह नहीं हमारा देश भारत सिर्फ कोलकाता और मुंबई की तरह। हमारा देश भारत 7 लाख गाँव का। ऐसे ही एक गांव सबलपुर की कहानी सुनते हैं, जहाँ एक व्यापारी सीताराम लोगों को कैसे ठग रहा। दृश्य 1। ये गांव में पैसे कमाना कितना आसान है। इन गांवों के लोगों को बेवकूफ बनाना मेरा बड़ी याद का खेल है। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। हाय भाविका, कैसी है? ठीक हूँ, तू कैसा है? बस ठीक। और बता क्या चल रहा है? क्या बताऊँ, अम्मा तो पीछे पड़ी हुई है, बेटा शादी कर ले, उम्र हो गई है, 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी है। 100 लड़की ने मुझे देखा, रिजेक्ट भी कर दिया। शादी? हाँ। शादी से मुझे याद आया गोरा होना, और उससे मुझे याद आया कि वो सीताराम की दुकान है ना। कहाँ है? कौन सीताराम? वो सीताराम, उसके पास एक नई करीम आई है। वो करीम से तुरंत ही आप गोरे हो जाते हैं। गोरे? क्या बात करी? कहाँ है ये सीताराम की दुकान? यही दाएं मुड़ेगा तो वहीं पे है। दाएं मुड़ के? चलो ठीक है, मैं उसे आज ही खरीदता हूँ और देखता हूँ। नमस्ते। लो आ गया और एक बकरा। भाई साहब, सीताराम की दुकान यही है? जी साहब, यही सीताराम की दुकान है। मैंने सुना है आपके यहाँ पे एक क्रीम मिलती है जिसे हम गोरा पाते हैं। आपने सही सुना। मैं अभी आपको एक क्रीम बताता हूँ। ये देखिए, ये क्रीम लगाने से आप तुरंत गोरे हो जाओगे। ये क्रीम कितने की है? ये क्रीम सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए? आपको 100 रुपए महंगे लगते हैं? जाके शहर में देखिए, पूरे 500 के उधर 500 के वो मिलता है। ये क्रीम 500 की? मुझे तो 400 रुपए के फायदा है, नहीं लेता हूँ, गोरा भी हो जाऊंगा। चलो ठीक है, ये लीजिए 100 रुपए। धन्यवाद साहब। शुक्रिया।
तो ये क्रीम लगा के मैं एक गांव का शाहरुख खान बनूंगा। एक तरफ सिमरन, एक तरफ किरण। ये क्रीम लगाने से क्या होगा देखते हैं। मैं तो और भी काला हो गया हूँ। क्या है ये क्रीम में? तो ये हुआ हमारे बबलू के साथ। चेहरा निखरने के बदले बिखरेगा। फंस गया रे बबलू, फंस गया। ये माँ, अब हम अभी तो देखेंगे उसे एक लड़की भी नहीं देखेगी। अब हम देखेंगे दृश्य 2, जहाँ एक दादी माँ के साथ क्या परेशानी। अरे ओ भैया जी माँ जी बोलिए। जी, पाव किलो लाल मिर्च देना हाँ जरूर देता हूँ माँ जी। जरा जल्दी। कितने हुए? सिर्फ 50 रुपये माँ जी। अरे बाप रे, इतने की 50? हाँ जी माँ जी। महंगाई तो मार ही डालेगी। दादी दादी आप आ गए? हाँ बेटा। दादी जल्दी जल्दी, भूख लगी है। हाँ बस 2 मिनट, वरना ट्यूशन क्यों? ये लो, खाना तैयार हो गया। अरे वाह दादी, ये तो मेरा मनपसंद खाना है। इसके लिए ही बनाया है, आज हम साथ में खाएंगे। ये लो। दादी ये बड़ा अजीब लग रहा है। क्या हुआ? पता नहीं, कुछ कंकड़ जैसा लग रहा है। हाँ, क्या था इसमें? लगता है जो मिर्च लाई वाला है उसी में कुछ होगा। चलो देखते हैं। चलो दादी। तो इस तरह से खाने में मिलावट कर सीताराम ने लोगों को बचाया। इस तरह के मिलावट के खिलाफ हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब देखेंगे दृश्य 3। क्या जाता है, डॉक्टर ने उसे लूटा होता है गलत दवाई देके। 3 दिन हो गए, इतना सर फटा जा रहा है, क्या करूं? इतने सारे काम है, खाना बनाना है। बम्बई से मेरी सहेली भी आने वाली है, अभी तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा सुनती हो, मैं आई अभी थोड़ी देर में। आइए, क्या हुआ? मेरा सिर 3 दिन से बैठिए, बैठ। फटा जा रहा है। अच्छा मुझे दिखाओ पल्स। कम है पल्स। मैं आपको दवा लिख के देती हूँ, सस्ती वाली दवा देती हूँ और फिर महंगे में लेती हूँ। तो ठीक है, तो फिर ये आप ले लीजिएगा और सुबह शाम भोजन के बाद खा लीजिएगा। क्या? भोजन के बाद ठीक है। सावधान। कुछ हुआ तो फिर जरूर वापस आइएगा। धन्यवाद। कितने हुए? तो 500 रुपये। थैंक यू। क्या हो गया, क्या हो गया? देखिए देखिए, ये बेहोश हो गई है। क्या हो गया? गाओ, हेलो, आओ। क्या हुआ? उठो उठो। आप यहाँ पे बैठ जाइए, बैठ जाइए। सुन सुन नन्हे मोरी के धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है, तू मेरी आँखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी के धुन। तो ऐसा हुआ गांव के एक महिला के साथ, और उसी रात डॉक्टर ने उसे बेवकूफ बना के उसी रात रफू चक्कर हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, 20 तारीख को सरपंच बैठने वाला है, तो प्लीज जिसकी भी जो भी शिकायत हो तो कृपया करके सरपंच के सामने पेश किए जाए। सरपंच पधार रहे हैं।
पंचायत शुरू किया जाए। साहब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे को वो सीताराम की दुकान है ना, 4 रास्ते पे दाएं मुड़ के, उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मेरे को क्रीम बेची जिससे वो बोला कि मैं गोरा निकाल पाऊंगा, पर देखो मैं और भी काला हो गया। अरे ये तो अपना बबलू है, हमने तो इसे पहचाना भी नहीं। देखा इतना काला हो गया कि अभी तो गांव वाले भी मुझे नहीं पहचानते। अरे तुम्हें बबलू है रखना? हाँ साहब, हाँ। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ अन्याय हुआ। पता है जब मैं लाल मिर्च लेने गई तब उसमें कंकड़ मिले, मैं खाना नहीं खा पाई, मेरी पोती भी। हमें इंसाफ चाहिए। ये सब के साथ में तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो अपना बच्चा चला गया। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? अरे आप सब ये क्या बात कर रहे हो? आपके साथ इतना कुछ हो गया और आप लोग ने अब तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई? शिकायत? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसके तहत ये हमारा कर्तव्य होता है। यदि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी की हुई हो या हमें किसी ने ठगा हुआ हो तो हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जी ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये तो हमारे जानकारी से बाहर था। अगर आपको शिकायत दर्ज करवानी है तो किसी ग्राहक जिसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई हो वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। पर हम उसकी शिकायत कहाँ पर दर्ज कराइए? आप अपनी शिकायत, अगर आपकी शिकायत 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए से कम है तो आप अपनी शिकायत जिला फोरम में दर्ज करवा सकते हैं। यदि आपकी शिकायत 1 करोड़ रुपए से 20 लाख रुपए से अधिक है किंतु 1 करोड़ रुपए से कम है तो आप अपनी शिकायत राज्य आयोग में करवा सकते हैं। किंतु 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आप अपनी शिकायत राष्ट्रीय आयोग में करवा सकते हैं। और यही नहीं, सरकार ने अपनी राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण हेल्पलाइन नंबर भी चालू किया है जिसके ऊपर आप फोन लगा के फोन पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हम में से कई लोग जब भी जागो ग्राहक जागो का अधिनियम देखते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हम तो जाग जाएंगे पर सरकार जाग जाए तो अच्छा। ऐसी मानसिकता भी हमें बदलनी चाहिए और हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ऐसे भी होता है? ऐसे होता है तो फिर मैं उसे आज ही जाके उससे जाके कंप्लेन करवाऊंगा। चलो तुम लोग भी चलो, उधर जाके कंप्लेन कराना चाहिए। हाँ, जरूर हम आवाज उठाएंगे। तो क्या आपको हमारा संदेश मिला? क्या आपको हमारा संदेश मिला? क्या आपको पता चला? कहना चाहते हैं सबक एक तो सीखने को, सबक एक को सीखने को। सावधान ग्राहक। सावधान ग्राहक, सावधान। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Now please be ready, team Golden. उपभोक्ता हो पूरा अधिकार। 5, 6, 7, 8 हमारा है पूरा ठाट। 9, 10, 11, 12 सपना होगा पूरा हमारा। 13, 14, 15, 16 दुकानदार का मन डोला, दुकानदार का मन डोला। 17, 18, 19, 20 दुकानदार निकला 420, 420, 420। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम है रंगीला, ऐसा भारत देश है मेरा। ऐसे भारत देश में देखिए किस तरह ग्राहकों को ठगा जाता है हमारे स्ट्रीट प्ले के द्वारा। अब देखिए पहला सीन जहाँ एक दुकानदार अपने ग्राहक को ठगता है। मेरे सपनों के ग्राहक कब आएगा तू, मुझे ठगने का मौका कब देगा तू। सुबह हो गई जल्दी से वो निकल दी तू, जल्दी आ तू जल्दी आ। अरे ओ भैया, हाँ 10 रुपए का दे देना। हाँ देता हूँ।
ये लो आपका तेल। 10 रुपए का तेल सिर्फ इतना सा? हाँ तो 10 रुपए में क्या पूरी दुकान खरीदेगी? एक्सक्यूज मी बहन जी, क्या हुआ? अरे देखो ना भैया, 10 रुपए का तेल सिर्फ इतना सा? चलिए। अरे भैया, 10 रुपए का तेल दिया, पोलियो का ड्रॉप दिया आपने। आपको शर्म आनी चाहिए, 10 रुपए का इतना सा तेल। देखिए, लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। लगता है इनको कंज्यूमर फोरम के बारे में पता नहीं है। बहन जी, पता है आपको कंज्यूमर फोरम के बारे में? अगर आप इनकी शिकायत दर्ज करिएगी ना, तो इनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और इनको जुर्माना तक भरना पड़ेगा। और यही नहीं, इनको तो जेल भी हो सकती है। जेल? क्या जेल? जेल हो सकती है। आइए हम आपको तेल देते हैं। देखो आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब निकला ना तेरा पूरा तेल। आप कीजिए। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। अभी आपने देखा कि किस तरह दुकानदार ने अपने ग्राहक को ठगने की कोशिश की। अब आप देखेंगे किस तरह केमिस्ट अपने ग्राहकों को बेवकूफ बनाता है। सीन 2। रामू, रामू, घर पे क्या रामू? अरे मालिक मालकिन आप? नमस्कार, नमस्कार। अरे रामू, इतने दिन से काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? बाबूजी बीमार थे, पता नहीं क्या हो गया इनको। क्या हुआ है इन्हें? पता नहीं क्या हुआ है, दवाई का असर ही नहीं हो रहा है कुछ, इतनी दवाई देने पर भी। तो भला हुआ उस केमिस्ट का जो आधे दाम में भी दवाई दे रहा है। हाँ, आधे दाम में? हाँ, जरा दवाई दिखाओ। एक मिनट। यही है। अरे ये तो एक्सपायर है। ये एक्सपायर क्या होता है? अवैध है, इसकी तारीख चल चुकी है। अरे ये जहर बन चुका है, जहर। जहर? क्या? वो केमिस्ट को कीड़े पड़े, कीड़े सारे सब मुझे मारने की कोशिश कर रहे। रामू तू भी? नहीं, बाबूजी हम क्या करें? डोंट बी पैनिक रामू, चलो हम कंज्यूमर फोरम जाके शिकायत दर्ज करते। हेल्पलाइन नंबर क्या उनका? हाँ, 1800-111400। हाँ। हेलो हेलो कंज्यूमर फोरम, हेलो, मुझे शिकायत दर्ज करनी। तो आपने देखा कि किस तरह एक ग्राहक को ठगा जाता है और किसी तरह एक मरीज को ठगा गया है। तो अब आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी फील्ड में कैसे मोबाइल शॉप वाले ठगते हैं। और रामू कैसा है मेरे भाई, बड़े दिनों बाद? मैं तो ठीक हूँ। हाँ? मेरा मोबाइल कुछ ठीक नहीं है यार। क्या यार, तेरा मोबाइल भी तेरे जैसे ही है, कभी तो नया ले रहे अभी। अरे यार पता नहीं क्या हो गया, सुबह से चालू ही नहीं हो रहा है। एक काम कर दे, चल किसी मोबाइल शॉप के पास चलते। हाँ, तेरा को है पहचान? अपना भाई है। हाँ चल चल। और गब्बर भाई, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो भैया? भाईजान का मोबाइल खराब हो गया, जरा इसको रिपेयर करो ना। अरे जनाब दिखाइए तो। अरे इसका तो ऐसे कराओ। अच्छा कर दो, डाल दो। ठीक है कर दो। 1000 रुपए लगेंगे। क्या गब्बर भाई, 1000 अपना भाई है, भाई से 1000 ले रहे हो क्या? 700 रुपए ले लो, निपटा दो, मैटर खत्म। भाई मैं 1000 से कम नहीं लेता, लेकिन तुम मेरे भाई के साथ आए हो, इसके लिए 700 रुपए ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। कल सुबह आके अपना मोबाइल लेके यार। हाँ अभी कुछ पैसा दे दो। 500 ले लो, बाकी के चल। बढ़िया। दूसरे दिन जब रामू जाता है तब क्या होता है देखो। वो मोबाइल ठीक हो? अरे अरे जनाब कैसे हो? हाँ मोबाइल ठीक हो गया, लीजिए लीजिए। सब ठीक है? हाँ 200 रुपए निकालिए, तब तक मैं आपका बिल बना देता हूँ। लीजिए बिल। अच्छा वो पुराना वाला एसी देना। भैया वो खराब हो चुका है, क्या करोगे उसका? हाँ पर फिर भी वो मेरा था ना, तो मुझे चाहिए वापस। अरे भाई साहब लगता है आप शहर में नए आए हो, अरे ऐसा मिलता नहीं है। जाइए क्या जबरदस्ती है यार, दिन दहाड़े ठग रहे हो आप हमें यार। अरे क्या हुआ भाई साहब? देखो ना, मेरे मोबाइल रिपेयर करने को दिया था और वो पुराना वाला आईसी वापस नहीं दे रहे मुझे। अरे भाई साहब, क्या आपको मुंबई के एसएस मूर्ति नाम के गृहस्थ को पहचानते हो? अब ये कौन है एसएस मूर्ति? अरे भाई साहब, हाल ही में उनका VRS खराब हो चुका था। उन्होंने उसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट जाके की थी। और एक्चुअली क्या हुआ था आपको पता है क्या? नहीं। क्या हुआ था ना कि वो एक जागरूक ग्राहक थे, इसीलिए वो गए, उन्होंने कंज्यूमर फोरम में उसकी रिपोर्ट लगवाई, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद उस रिपेयरिंग वाले का उसे जुर्माना देना पड़ा और शायद हाँ उसे जेल भी हो सकती थी। जेल? अरे अरे नहीं भाई, अरे अपना लो यार ऐसी यार, क्या तुम सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? माफ करना भाई। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। तो आइए हम इस स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक आज एक संकल्प करते, हम सब मिलके ना ही किसी को ठगेंगे और ना ही किसी को ठगने देंगे। जय हिंद, जय भारत।
Okay, golden team. Then please be ready, green team. Okay, green team. And next one is orange. Orange. Team is orange and please wait for the judge permission. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance I wanna go up once again. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. काय रे योगेश लेक्चरला नाही आला तू हे सिद्धांत लवकर आज. लवकर सुटलं अरे मी नाही थांबलो काय बोर होत होतं लेक्चर. तू आजकाल बसतही नाही लेक्चरला काय सांगतात ते वेगळं ऍक्ट सेक्शन तेच सांगतात दुसरं काय सांगतात. आजचा कॉन्सेप्ट इतका जबरदस्त होता अरे मी मागच्या वर्षी बसलो तरी केटी लागली मला. कधी लागत राहते लॉवाल्यांना हा. पण तुला माहिती आहे आजचा टॉपिक काय होता तू शिकून काय असेल मॅडमने शिकवलं एवढं. सेक्शुअल हॅरेसमेंट आहे हा ते छेडछाड ते सगळं. अच्छा सेक्शुअल हॅरेसमेंट म्हणजे फक्त छेडछाडच वाटलं का तुला सेक्शुअल हॅरेसमेंट अजून काय? अच्छा मग मी तुला सांगत नाही मी तुला एक ऍक्ट द्वारा दाखवते की सेक्शुअल हॅरेसमेंट मध्ये काय काय Act येतं बरं. चल बघतो मी. क्या सरिता कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? क्या यार लड़कों के साथ घूमती है, लड़का हो गई पूरी तो। यार तू भी कुछ भी क्या बोलती है। कोमल कैसी तू? ठीक हूँ, हाय तू कोमल। कैसा है? अरे कुछ नहीं बस मजे ले रहे। ये देख अपना फ्रेंड है। हाय। क्या कर रही तू? अरे कल का वीडियो देखा क्या तूने? हाँ, क्या मछली जो बेचते हैं, अरे हम हम ये देखा भेजेगा ना? ना और भेजेगा अभी वीडियो देख, बना रहा एक तो वीडियो WhatsApp पे आते देख हाँ, ना बेच तू। बेच। वो छोड़ी तेरी फ्रेंड है क्या? हाँ, ये अरे मेरी इसको भी friend ऐड करना फिर क्या कर रही हाँ, तू? ये देख, ये देख। चलेगा चलो ये वीडियो तो देखो यार अभी है एक मार्केट में। छी क्या देखते हो तुम लोग ये सब, शर्म नहीं आती तुम लोग अरे को? तो ये करते क्या तुम भी मैडम? छी कैसा वीडियो देखते हो अरे तुम बोल ना, लोग? क्या है? मैम ये उम्र में वीडियो नहीं, ये वीडियो नहीं देखोगे क्या? ये भी देखिए। छोटा नहीं देखोगे? छी सब लड़की लोग देते क्या उसमें? यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप चुप बैठे रहेंगे? जी नहीं। यदि आपका कोई भी मित्र या कोई भी अनजान व्यक्ति आपको कोई भी अश्लील वीडियो दिखाता है आपकी मर्जी के खिलाफ, तो पुलिस में पहले कंप्लेंट फाइल कीजिए या आईपीसी सेक्शन 354 ए के तहत इसे कानूनी अपराध माना गया है जिसमें 3 साल जेल की सजा और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। बघ आता काय म्हणणं आहे तुझं अरे म्हणजे असं होतं की सेक्शुअल हॅरेसमेंट छेडछाड नाही तर तिला अश्लील व्हिडिओ दाखवणं फोटोग्राफी असं सर्व ना. एक्झॅक्टली हा. पण अजूनही काय आहे ते त्या डायरेक्ट येतं अरे बस ना किती टाकते तू अजून. बघ आता तुला दाखवत आहे सगळं. चल ठीक आहे. सर मैं ऑर्गेनाइजेशन से आई हूँ, हमें एक फंड चाहिए तो मुझे एमएलए सर से मिलना है। आपने अपॉइंटमेंट लिया था? जी नहीं सर। आपको अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए ना, आपको पता है ना सर कितने बिजी रहते हैं. सर मुझे पता नहीं था। ठीक है आप एक मिनट रुकिए, मैं सर से परमिशन लेके सर बाहर एक मस्त मॅडम आहे मॅडम? म्हणते समाजसेविक आहे. मग पाठवा आतमध्ये बाहेर ठीक आहे, मॅडम पाठवा. मॅडम आतमध्ये पाठवतो मॅडम आई सर टी मॅडम. ठीक है जा तू चाय पानी दो मैं आए थे। हाँ मैडम बोला क्या काम है आपका? सर मैं ऑर्गेनाइजेशन से आई हूँ, हमें फंड चाहिए। सर कसला फंड? सर ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर आगे उज्जवल हो सके। तो हमारा क्या? सर मतलब क्या है आपका? मतलब साफ है मैडम क्या तुम भी इतने पढ़ी लिखी हो गए आपको मतलब नहीं समझता? सर हम ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैडम देखो आप हमें कुछ कर दो हम आपको कुछ कर देंगे। आज फंड ही छोड़िए तो चाहिए मेरा, ना। मेरा हाथ छोड़िए मेरा। अरे मैडम कुछ नहीं होता इससे सब लोग यही करते हैं यहाँ पे। मैं पुलिस में जाऊंगी, मैं मीडिया में मैडम जाऊंगी। पुलिस मेरे जेब में समझे ना मीडिया मीडिया कुछ नहीं होता है चलो जाओ फिर यहाँ से नहीं तो- मैडम मुझे कंप्लेंट लिखवानी थी। मला काय कंप्लेंट आहे जो हमारे एरिया के एमएलए साहब है ना, उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। आपले पाटील जावा तू का गेली होती तिकडे मैडम मैं तो फंड मांगने के लिए गई थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आणि मग काय झालं उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। तुला बघून तर असं काहीच वाटत नाहीये पण वेडी का खुळी आहेस तू तुझ्या फंडच्या चक्करमध्ये आमच्या नोकऱ्या जायची वेळ येईल
चल निघ इकडून. रोज अशा 10 बायका येतात त्यांना बदनाम करायला. चल चल, काही कंप्लेंट वगैरे घेतली नाही जाणार. बघितलं आपण काय परिस्थिती आली ती. ही समाजसेविका ही कोणाकडे गेली तर MLA आपला आमदार त्याच्याकडे मोठ्या विश्वासाने गेली, पण तिला न्याय मिळाला नाही. कहर म्हणजे ती पोलिसांकडे गेली. पोलीस आपले रक्षक, ठीक आहे आपण MLA समजून घेऊ, आजकाल सगळे जास्तीत जास्त MLA तसेच निघतात, पण पोलीस जे आपले रक्षक आहेत तेही असे वागतायत. काय करायचं? येथे IPCचं सेक्शन आहे. IPCचं सेक्शन 166A. जर कोणताही पब्लिक सर्वंट म्हणजे फक्त पोलीसच नाही, जो गव्हर्नमेंट ऑफिसर असू शकतो, तो जर त्याची ड्युटी नीट करत नसेल तर आपण त्याच्याबद्दल कंप्लेंट फाईल केली पाहिजे. त्याला 3 महिन्यापासून ते 2 वर्षापर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. परिस्थिती जशी असेल तशी. त्याची तिथे क्रिमिनल प्रोसिजर कोडचाही थोडा भाग येतो. बघूया, कारण आता ही पुढे समाजसेविका समाजाकडे. समाज कोण? तर आपण सर्व. मी सुद्धा येतो याच्यात. आपल्याला खूप काय करतात अशी काही घटना घडली की आपलं रिएक्शन वेगळं असतं. आपल्या घरात घडली तर वेगळी आणि दुसऱ्याच्या घरात घडली तर वेगळी. बघूया आता ही जाते आपल्याकडे, आपण तिला मदत करतो का कसे वागतो. अब तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है. वोट सी दिए है जनता के, जानों पर पहरा भी है. अशी काही घटना घडली की आपल्याला खूप हौस असते. मेणबत्ती घ्यायची, उभं राहायचं. अरे फॅशन आहे, व्हॉट्सअपवर एक फोटो टाकला नाही सगळ्या मुली मागे, अरे हा गेलेलाच. हा आपला समाज, हे आपण आहे सगळे. मी पण आहे. हा कधीच काही बोलत नाही, कधीच ऐकत नाही, कधीच बोलत नाही. का असं? जर आपल्याकडे परिस्थिती घडली तर किती वेगळी असते. तेव्हा आपल्याला वाटतं सगळ्यांनी मदत करायची, पण जेव्हा शेजारच्या घरात घडतं ना तेव्हा आपण कोणीच मदत करतो. तेव्हा आपण सगळे असे वागतो. कधी बदलणारी परिस्थिती. ही समाजसेविकेला इथे न्याय मिळालाच नाही. बघूया पुढे अजून काय परिस्थिती बदलते का. क्या इस दिन के लिए हम इन्हें चुनते हैं? जो ताकत इन्हें देश की सेवा करने के लिए दी जाती है, उस ताकत का ये ऐसा उपयोग करते हैं. कोई भी पुरुष किसी भी महिला को निवस्त्र करता है आपराधिक बल पर या जबरदस्ती, तो उसे 3 से 7 साल की जेल और पेनल्टी भरनी पड़ सकती है. सेक्शन 354B IPC के तहत. इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 144A, उसके तहत ओरल एविडेंस दिया गया उस महिला के द्वारा वैलिड माना जाएगा. यार खूप वाईट परिस्थिती आली त्या समाजसेविकेवर. पण घडतंय असं, आपण ऐकतोय. आणि इथे हा कॉमन आहे. या चर्चा करण्यात आपल्या दोघांमध्ये काय आहे? मला ते सगळं जाऊ द्या आता पकडले. हा तुम्हाला सांग, कोणत्या गोष्टी छेड काढत होता रे तो? अरे तू बघितलं? करत होता. अरे खूप दिवसापासून तिच्या मागे लाईनच देत नाही ती. थोडक्यात वाचलंच पण योग्य बरं का. बघ आता त्याच्यासाठी पण एक ऍक्टच आहे माझ्याकडे. बापरे. आपकी प्रॉब्लम क्या है? मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, मेरा पीछा कर रहे हो. पहचानती नहीं क्या मुझे? मैं तेरा क्लासमेट हूँ, मुझे इंग्लिश की नोट्स चाहिए. तो इसमें पीछा करने की क्या जरूरत है? मेरे पास अभी नहीं है, मैं कल दे दूंगी. ठीक है नोट्स कर दे, उससे पहले मैं कुछ दिखा था वो दे. क्या? दे. ये मेरी गंदी फोटो तेरे पास कैसे? शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए? शर्म नहीं आई तभी तो निकाली. इधर दे, डिलीट कर. नहीं दूंगा. क्यों? डिलीट कर. अगर तू चाहती है मैं डिलीट करूँ तो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर. मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर, नहीं तो तू खुद समझ सकती है. एक क्लिक पे क्या होगा, इंटरनेट पे अपलोड, वो तेरी क्या हालत होगी वो खुद समझ सकती है. देख, मैं तेरे हाथ को जोड़ रही हूँ, ऐसा मत कर. मेरा सोसाइटी में पूरा नाम खराब हो मैं जाएगा. बोलता हूँ वैसा कर. प्लीज ऐसा मत कर, प्लीज. अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के अश्लील फोटो निकालता है या फिर वीडियो निकालता है और उसे इंटरनेट पे डालने या सोशल मीडिया पे डालने की कोशिश करता है, तो उसे IPC के सेक्शन 354C के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी हो सकता है. और अगर वो इंटरनेट पे डालता है, अपलोड करता है सोशल मीडिया पे, तो उसका साइबर लॉ के तहत 66E के तहत 3 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना भी हो सकता है. और इतना ही नहीं, अगर कोई भी पुरुष किसी महिला का पीछा कर रहा हो या उसे किसी भी तरह परेशान कर रहा हो, तो सेक्शन 354D IPC इसके तहत उसे 3 साल की जेल और पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है. शपथ वाचलो. वाचलं की नाही थोडक्यात. तिने जर कंप्लेंट केली असती तर आज जेलमध्ये असतो मी. Exactly. सोडायला तुला यावं लागलं असतं. ठीक आहे, हे बघ हे सगळं तू दाखव. तू एवढं दाखवलंय तर मला पण प्रश्न पडले यार. विचार. पण ते विचारण्यापेक्षा मी पण दाखवतो. ओके. चल. Yes, come in. मैं आपने बुलाया था. हाँ भावेश, कल तुम्हारा प्रेजेंटेशन है ना? Yes, ma'am. प्रिपरेशन हो गई? थैंक यू. भावेश, तुम्हें नहीं लगता यहाँ थोड़ी रेक्टिफिकेशन की जरूरत है? कहाँ मैम? देखो ना, मैम नहीं बरोबर है. देखो ना. मैम मैं कब से देख रहा हूँ, कितने कई बार बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं.
मैं कहाँ गरीब आ रही हूँ? आजकल तो ये मॉडर्न सोसाइटी, आजकल तो ये सब चलता है। पर मुझे नहीं चलता है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो मैंने कब कहा अपना परिवार छोड़ दो, अपने बच्चों को छोड़ दो? नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता ना, मेरी जिम्मेदारी है वो। सुनो भावेश, मैं तुम्हारी बॉस हूँ और मुझे मैं बोलने दी हूँ, तुम्हें करना पड़ेगा। रुको भावेश, अगर यहाँ से जॉब छोड़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे। सुनो, मैं तुम्हें किस ऊंचाइयों तक पहुँचा सकती हूँ। बघितलं सिद्धार्थ, काय होतं योगेश? हे काही वेगळं नव्हतं, हे घडतं, तुला माहिती नाही? मी ऐकलंय पण तुला दाखवलं तर मी अचानक राहिले यार. मग सांग याला प्रोटेक्शन कुठे मिळेल? हा बाहेर जाऊन सांगेल, अरे बाईने माझी छेड काढली. मला तरी नाही वाटत. विशाखा गाईडलाईन मध्ये काय आहे का याला? त्याच्यासाठी तर फक्त लिगल गाईडलाईन्स आहेत ना. चल ठीक आहे, मी तुला अजून एक दाखवतो. हे तो अँगल असा आहे, हा मला कॅमेरा तसा पाहिजे. सर, मेरी मूवी का क्या हुआ? अरे मूवी कोमल, में डांस करने वाले थे। कैसी है रे तू? आज बड़े दिनों बाद आई. तो क्या मूवी में लेने वाले थे? क्या वो मूवी का? अरे ये मूवी ना जरा सब्जेक्ट अलग है, तो ये एक्ट्रेस फिट बैठती है, इसलिए मैंने तुझे नहीं लिया. नेक्स्ट फिल्म में मैं पक्का तुझे ही लूंगा. देखो, तुमने मुझे कहा था तुम इस मूवी में मुझे लोगे। मुझे ये मूवी कैसे भी चाहिए। तो बहुत शांत हो जाओ, प्रोड्यूसर का पैसा है, मेरा नहीं. प्रोड्यूसर जो बोलेगा मैं वही करेगा. अब तू देख मैं ऐसा क्या करती हूँ। मेरी मीडिया में बहुत पहुंच है, तेरा पूरा नाम खराब कर दूंगी मैं, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। देख अब तू। बहुत तू निकल. नमस्कार 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 भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल फेक न्यूज चैनल। और देखिए हम आपको एक दिखाने वाले ऐसी खबर जो सनसनी है, सनसनी आप देखकर चौंक जाएंगे। खूबसूरत कोमल और एक्ट्रेस है जो कि मशहूर एक्ट्रेस है, इन्होंने एक मशहूर डायरेक्टर पे दावा किया है जो कि खूबसूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस किया है। देखते हैं हम जानते हैं मैडम से। मैडम आपका क्या कहना है? मैडम कैमरे में देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, जनता जानना चाहती है। मुझे उस डायरेक्टर ने हैरेस करने की कोशिश की। क्यों मैडम, क्यों ऐसा क्या हुआ? मूवी देखने के बहाने मेरे से जबरदस्ती की। ओहो, देखिए आप किसी लाचार महिला क्या बोल रही है। इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोशिश की गई। अब जानते हैं हम सर से। सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैंने कुछ नहीं किया. सर सर कैमरा प्लीज प्लीज। वो एक्ट्रेस गलत बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया. ऐसे कैसे? मतलब वो महिला झूठ बोल रही है? मेरा फिल्म इंडस्ट्री में इतना करियर है, कभी आपने सुना ऐसा कुछ हुआ है? मतलब क्या है इसका मतलब? सर बोल रहे हैं इतने महिला ने नाम नहीं उठाया, एक महिला नाम उठा रही है, मतलब ये गलत है? आप तो सर तो दागी है मतलब। अरे बाप रे, चलो अभी देखते हैं हम इसके आगे क्या होता है। बघितलं सिद्धार्थ? परत यार, म्हणजे फक्त कॉमन पब्लिक सोबत नाही तर कोणीतरी मशहूर असली सोबत पण हे आपल्या बॉलिवूडमध्ये घडले, आपण नाव नाही घेऊ शकत पण घडलेलं आहे. माहिती काहीतरी ऍक्शन घेत असतील. तेच विचारात पडले. पण हे बघा, क्रिमिनल डिफॉर्मेशन CRPC 365 क्रिमिनल डिफॉर्मेशन, येस. त्याच्या अंदर कदाचित ही केस येऊ शकते. पण मेल हॅरेसमेंट, हे मलाही कळलं नाही म्हणून मी तुला मेल सेक्शुअल हॅरेसमेंट सुद्धा नाहीये. हे बघ, तुला अजून एक विचार करायला वेळ देतो. एक लास्ट सीन बघ, मग तू काय बघते सांग. आज तुझं हल्ली सारखंच चाललंय, लवकर जायचंय. आज अजिबात जायचं नाही. तुला माहितीये ना साहेब घरी नाहीये, आज तर तुला घरी यायचंय. मॅडम मी रोज रोज नाही येऊ शकत मॅडम, प्लीज मॅडम. मी सांगते ते तुला करायचंच आहे. मॅडम मी बाहेर सगळ्यांना सांगून टाकले काय होतंय माझ्यावर. कोणाला सांगशील? कोण ऐकणार आहे तुझं? पुरुष आहेस तू, माझ्यासमोर तुझं कोणीच ऐकणार नाहीये. तरी मी नाही मॅडम, आज काही होते. हे बघ, मी सांगते ना तेवढं ऐकायचं. दुकानावर आणि घरी आहे. मी वाट बघते. हे काय होते माझ्या बरोबर? कदाचित मी पुरुष आहे म्हणून मी सेक्शुअल हॅरेसमेंट हा वर्ड यूज नाही करू शकत का? माझ्या बरोबर लैंगिक छळ, सेक्शुअल जे काय बोलू शकत ते होतंय, पण नाही मी बोलू नाही शकत सेक्शुअल हॅरेसमेंट. मी पोलिसांकडे जाणार नाही, तिने मला धमकी दिली ना. तुझं कोण ऐकणार? पुरुष आहे तू. कदाचित नाही जाऊ शकत मी. मी घरी काय सांगणार, कोणाला सांगणार? बाहेर माझं मजा कुठं होती? बोलते सेक्शुअल पुरुषाबरोबर. आम्हाला यार काय आहे, सेक्शुअल हॅरेसमेंट पुरुषाबरोबर नाही होत, फक्त एक पुरुषच महिलावर करतो. तर माझं काय, माझ्यासाठी काय नाही का? माझ्यावर लैंगिक छळ, अत्याचार, सेक्शुअल हॅरेसमेंट जे काय ते नाही होऊ शकत का? काय करू मी? कदाचित माझ्याकडे दुसरं नाही आहे ऑप्शन. माझं फक्त आयुष्य संपण्यापासून. बस बस आता नाही जगणार मी. मला नाही जगायचं कारण, नाही जगू शकत मी. माझे आई बाबा काय काय उत्तर देऊ देवा? असं हे आयुष्य संपवायचं नव्हतं मला, पण कदाचित त्याशिवाय माझ्याकडे काय ऑप्शन नाही आहे. काय म्हणणं आहे सिद्धांत तुझं? योगेश, मला आठवत आहे मी इंडिया टाइम्समध्ये अशी एक केस वाचली आहे. बरोबर, 2013 ची. मला तेच झालेलं आहे.
मेलसाठी एवढं लॉज आहे हा. तर मेलला सेक्शुअली प्रोटेक्ट करण्यासाठी काय आहे? हेच मी तुला विचारलं काय माझ्याकडे खरंच काही होत नाही. बघा, आपली सोसायटी आणि न्याय व्यवस्था हे इंटरलिंक आहे. सोसायटी बदलते तशी न्याय व्यवस्थाही बदलला पाहिजे. अमेंडमेंट आले पाहिजे, नवीन ऍक्ट आले पाहिजे. बरोबर तर ते येत आहे. येत आहे पण कोप नाही होत हे आहे. बघ, आपली इंडियन सोसायटी ना जोरात पुढे जातात. तुला माहिती आहे आता 377चा विषय ते तर मी विचारही नाही करू शकत. समज कोणत्या पुरुषाने पुरुषाची छेड काढली अरे बाबा, मी नाही विचार करू शकत त्यावर. कुठे जाईल तो? हा आमचा फक्त एक प्रयत्न होता. कोणाच्याही भावना आम्हाला दुखवायच्या नव्हत्या, पण आम्हाला काहीतरी दाखवायचं होतं. आम्हाला संविधान आणि न्यायव्यवस्थेमध्ये विश्वास असून जे प्रत्यक्ष आता घडतंय तेच आम्ही दर्शवायचा प्रयत्न केलेला आहे. कारण जेव्हा आपण राईट टू इक्वॅलिटी बोलतो तेव्हा मेल आणि फिमेल यांना इक्वल राईट मिळालेच पाहिजे. मग ते हॅरेसमेंट विषयी का नाही? आणि जेव्हा समानता येईल तेव्हाच आपला सगळा समाज एकत्र पुढे जाईल. जब महिला पुरुष एक समान हो, एक जैसा सम्मान हो। जब महिला पुरुष एक समान हो, एक जैसा सम्मान हो। Thank you, Team Orange. Now, Team Pink. Team Pink, please be ready. This is please note the next Team Pink. Please wait for the judge permission. आर्टिकल 354 भविष्य हूँ और तू मेरा हिस्सा है। मैं तेरा अतीत हूँ, तू भी मेरा इतिहास है। मैं ही तेरा माजी था, पर तुझसे मेरा वजूद है। मैं ही तेरा डर था, मैं ही तेरी पुकार हूँ। मैं तेरा भविष्य हूँ, तू मेरा आगाज है। मैं ही तेरी चीख था, मैं ही तेरी खोज हूँ। मैं तेरा सवाल था, मैं ही तेरा जवाब हूँ। मैं ही कानून हूँ, मैं ही कानून की धारा हूँ। 3 हूँ, 5 हूँ, 4 हूँ मैं ही 354 हूँ, मैं ही 354 हूँ। अरे दीपिका, वो ऑफिस का क्लाइंट कब से चक्कर लगा रहे हैं, 2 महीने से ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, उसका काम करके दे। छोड़ ना, तू क्यों टेंशन ले रही है? तेरा क्लाइंट है ना, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। मेरा होता तब तक उसका काम हो गया होता। मैनेज कर लेगी मैं। अरे तू काम पे ध्यान दे, कितना मैनेज करेगी? एक भी काम तूने अब तक ठीक से नहीं किया। मॉर्निंग गर्ल्स। मॉर्निंग सर। हाय दीपिका। हेलो। हाय अनु। हाय सर। तो आजकल बहुत कॉलेज हो रहे हैं। छोड़ो ना सर। अरे आप बोलो तो मैं दुनिया छोड़ दूँ। वैसे वो मेरे क्लाइंट का क्या हुआ? मैं सब मैनेज कर लूँगी। तुम बहुत अच्छा मैनेज करती हो। बाय दीपिका। बाय अनु। दीपिका, ऑफिस में प्रमोशन लेटर्स आने वाले, तुझे क्या लगता है? अरे मैं तुझे वही कहने वाली थी। मुझे तो पक्का श्योर है इस बार प्रमोशन मुझे मिलने वाला है। लेकिन तुझे ये पता नहीं कि प्रमोशन मुझे मिली है। मिली है? हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है तुझे मिली है? प्रमोशन मैं डिजर्व करती हूँ। और प्रमोशन के लिए तो बॉस ने कोई बात ही नहीं कही। अरे मेरी जान, प्रमोशन पाने के लिए बॉस को थोड़ा खुश करो, थोड़ा हंसो, मुस्कुराओ। फिर तरक्की तो अपनी है ना। तरक्की पाने के लिए ये सब नहीं करना पड़ता। और मैं अपने वर्ग में भी तरक्की पा सकती हूँ। मैं अभी बॉस से बात करती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? हाँ ये। ओ अनु, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सर मुझे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। सर मैं जानना चाहती थी मेरा काम कैसा चल रहा अरे काम तो एकदम बढ़िया चल रहा है आपका। है। सर मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ ना? सब अच्छे से करती हो आप, सब अच्छे तो से। सर प्रमोशन मेरे बजाय किसी और को क्यों? सर शैम्पू कौन सा लगाती हो? सर आप काम की बात करिए। अरे आप पास तो आइए ना, इतना सर, दूर क्यों जाती हो? सर आप काम की बात करिए। अरे मैं काम की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा बोलो, मैं सुनता हूँ। सर प्रमोशन मेरे बजाय किसी और को क्यों? ओ। मैं प्रमोशन डिजर्व करती हूँ सर। ओ तो यू मीन दीपिका? सर वो मेरी खास है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। सर खास आप का थोड़ा मतलब- कर दो ना। नहीं सर, सर आप गलत समझ रहे हैं। सर आप मुझे गलत नहीं है ये। सर मैं ये सब नहीं कर सकती सर। अनु ऊपर जाने के लिए नीचे सोना नहीं पड़ता सर, है। नहीं सर, सर आप गलत समझे। सर मैं ये नहीं कर सकती तुम्हें सर। करना सर होगा। मैं नहीं कर सकती सर, मैं तुम्हें नहीं करना कर होगा सकती। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? कोई मुझे जवाब दो। मैं हूँ तेरा जवाब। मैं कानून हूँ। भारतीय दंड संहिता धारा 354A के तहत मैं तुझे ये अधिकार देता हूँ
कि कोई पुरुष यदि किसी स्त्री का यौन उत्पीड़न करता है तो उसे या उससे सेक्सुअल फेवर ऑफर मांगता है तो उसे 3 साल कैद की सजा एवं जुर्माना हो सकता है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री पर कोई अभद्र सेक्सुअल कमेंट करता है तो उसे 1 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये दोनों सजाएं संज्ञेय एवं जमानती है। अरे जरा ठीक से कर ना, तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या तुझे? ठीक से कर। अरे भगवान मुंह बंद कर, बोल चाल में दिखता नहीं तेरे को। जय माता दी लाला जी। हाँ सब ठीक है, आपका आशीर्वाद है। अरे बस छोटे कपड़े पहनकर शराब तो पिलानी है। हाँ अरे मेरी बहू तो गाय है, गाय सब कर देगी वो। हाँ अरे छोड़ो, देरी हो रही है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। जय माता दी। बेटा महेश इधर आओ बेटा। हाँ बोलिए पापा। बेटा तुम्हारी घरवाली मानी की नहीं? नहीं पापा, वो नहीं मान रही है। अरे क्यों नहीं मान रही? अरे छोटा सा काम है, सिर्फ शराब तो पिलानी है। पापा वो देखिए पूरा दिन पूजा पाठ करने में ही व्यस्त रहती है। अरे ऐसी पूजा यहाँ करने से अच्छा अगर वहाँ पूजा करे तो तेरा भी भला हो जाएगा, मेरा भी। यहाँ पे आओ, समझाओ अपने लड़के को। क्या हुआ बेटा, वो मानी की नहीं? नहीं मान रही है माँ। अरे क्यों नहीं मान रही है? उसको शादी करके रानी बनने के लिए नहीं, नौकरानी बनने के लिए लाया। अभी दिखाता हूँ माँ, मैं मर्द हूँ। अरे जा मर्द। ए पूजा चल यहाँ पे आ। क्यों नहीं मान रही है तू? अगर तूने नहीं किया ना, हमारा कहना माना नहीं, जला देंगे शादी तेरे को। मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? आप तो मेरे पति हो, आप इनको समझाओ। पति परमेश्वर कुछ नहीं होता। अरे सासू माँ आप ही कभी बहू थी, आप तो इन्हें समझाओ। अरे क्यों नहीं कर सकती? तेरे बाप ने शादी में दहेज नहीं दिया, अभी तू तो कमा के। अरे मैंने शादी इसके लिए नहीं की, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। चल, क्यों नहीं तुझे कर लाना ही सकती? पड़ेगा। करना पड़ेगा। बस तो मैं ये नहीं कर सकती। ये नहीं, छोटे कपड़े तुझे ये पहनने पड़ेंगे, तुझे करना पड़ेगा। ये सब पाप है, आप लोग समझो, मैं ये नहीं कर सकते। तुझे कमा के लेना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर सकती। चल अभी घर के बाकी काम कर और शाम तक तैयार हो जा, तुझे जाना है। मैं अपना घर छोड़ के इन लोगों के भरोसे आई, अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई तो मुझे जवाब दो। तू डर मत, मैं तेरा जवाब हूँ। मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 354B के तहत तुझे अधिकार देता हूँ कि अगर कोई पुरुष जबरन तेरे कपड़े उतारने की कोशिश करता है या तुझे कपड़े तेरी मर्जी के खिलाफ उतारने पे मजबूर करता है तो उसे कम से कम 3 साल से 7 साल तक की कैद की सजा एवं जुर्माना हो सकता है। यह अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती है। ओम जय जगदीश हरे। एयरपोर्ट भगवान के बोल, कस्टमर आने दे। हाँ सेठ जी, आज कस्टमर आएगा। और अपने रूम का क्या हुआ? हाँ सेठ जी, टेंशन मत कीजिए, रूम एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर एक भी वीडियो नहीं निकला तो तेरा पगार भी गया, बोनस भी। हाँ सेठ जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम कुछ ठंडा? नहीं शुक्रिया। कुछ गरम मैडम? नहीं शुक्रिया। वो वाले कपड़े दिखाना। रामू हाँ सेठ जी। दिख रहा नहीं है तुझे? हाँ सेठ जी, आया। मुझे वो वन पीस दिखाओ। कौन सा वाला? ये वाला? हाँ वो लाल वाली। ये लीजिए, देखिए मैडम। मस्त दिख रहा है मैडम, सेल्फी लो ना। नहीं इसमें दूसरा कलर नहीं और थोड़ा छोटे लगेंगे। ओके। और सुनाइए मैडम, आपकी कोई बहन? ये वाला चलेगा मैडम? नहीं भैया, उधर स्काई ब्लू है ना? ये वाला? हाँ। ठीक है। ये देखिए, एकदम बढ़िया माल है। मैडम शुक्रिया। मैडम आप ट्राई नहीं करेंगी? एक बार पहन के देखिए मैडम। अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं तो एक बार देखिए लगा जल्दी ला। लगाया सेठ जी? क्या कपड़ा- मस्त दिख रही है ना? क्या कपड़ा उतार रही है, देख एकदम चीज लग रही है। एकदम कामू नौकर तो तेरे ऐसा हो। सेठ जी, आज लाखों का कमाई तो हो जाएगा। कपड़ा बिके ना बिके, ये तो बिक जाए। बिक जाएगा सेठ जी। भैया ये पैक कर दो। हाँ रामू। हाँ सेठ जी। बेटा मैडम आई है, पैक कर दे। और कुछ कम ज्यादा तो करो। मैडम आपने बोनी किया है, आप 1000 का 500 दे दो। इतना कम? मैडम आप फर्स्ट कस्टमर हो। अरे लेकिन आप लो, बाद में बात करो। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। आपकी दुकान बहुत अच्छी है और आपका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। आप आइए अपनी बहन को लेके। हाँ जरूर। पैसा भी मिल जाएगा और माल भी। मैडम आपको देखा है कहीं?
क्योंकि शादी के लिए जाना तो प्लीज जल्दी दिखाओ। रामू देखो कस्टमर दिखाई नहीं देता है। आया आया सेठ जी आया, क्या हुआ? शादी के लिए जाना तो कुछ दिखाओ। ये चलेगा मैडम? वो बात कर। हाँ वो वाला। ये वाला? हाँ। ये देखिए मैडम सॉलिड लग रहा है एकदम। मैडम, एक बार पहन के तो देखिए। दूसरा। ठीक है। हाँ मैडम अच्छी दिख रही थी उसमें। हाँ, ये वाला? हाँ। अरे जल्दी ला रहे मैडम को देर हो रहा है। ये देखिए एकदम बढ़िया चीज है। ठीक है पैक कर लो, मुझे बहुत जल्दी है। नहीं नहीं मैडम आपको ट्राई करना पड़ेगा। रही हो अगर कम छोटा पड़ा तो आप वहाँ से आओगी, हम नहीं देंगे। इससे अच्छा पैक कर आप एक बार ट्राई करके देखो और पहन के फिर ले देखिए लो। मैडम जी, एक बार ठीक है ठीक है। पहन के देखिए। गलत है। क्या गलत है? कर सकते क्या आप? नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्या करोगी आप? हाँ क्या करोगी? मैं पुलिस में चल जाऊँ। चल भाग, ये निकल इसको। ये लोग पुलिस से भी नहीं डरते। मैं किसके पास जाऊँ? करूँ तो मैं क्या करूँ? मुझे कोई जवाब दो। डर मत, मैं हूँ तेरा जवाब। मैं भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत तुझे अधिकार देता हूँ कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की निजी क्षणों की तस्वीरें उतारता है और उसे फैलाता है तो उसे 1 से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है और उसी के साथ उसे जुर्माना हो सकता है। यदि वो शख्स ऐसी हरकत दोबारा करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा हो सकती है। उसी के साथ उसे जुर्माना भी हो सकता है। ये दोनों सजाएं संज्ञेय एवं जमानती है। क्या यार अपने इतने टाइम से खड़े रहे सब तुमने छोड़ दिया है प्यार के चक्कर में। अपनी आइटम मारी नहीं चाहिए यार। इतना कंटेंट आ रहा चलती है क्या 9 से 12। अरे बदतमीज समझते नहीं है। बदतमीज तो हो गया आपको देखे कब से। मुझे छोड़ो, मुझे कॉलेज जाना है। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। जाने मान। मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो बेल पूरी खा रहा था। मैं पढ़ाई करने कॉलेज जाऊँ। मैं तो तुम्हें देखने आता हूँ। अरे भाई मेरी बात सुन। भैया नहीं हूँ मैं तो तेरा सैया हूँ। किसने बोला? सेल्फी लेते ना एक। एक काम करो, आप मुझे कॉलेज जाने दो। नहीं ये देखा ही बात अरे भाई प्लीज मेरी बात सुनो। मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा। सुनना पड़ेगा, रोज तो क्यों उसमें जाने ही वो नहीं आएगा। अरे वो हाथ में तू चल, कुछ नहीं होगा। आप क्यों परेशान कर रहे हो उसको? उसकी friend हो। तो आप क्यों परेशान कर रहे हो उसको? हमें जाने तो पड़ेगा। आप एक कॉलेज बंद करवाओगे हमें। जाओ ना। आप क्यों ऐसे कर रहे हो? मत करो ऐसे भाई। अरे जा मत जा। यार किस किस को लेके आई? हाँ किसको लेके आई? नहीं प्यार करते तेरे से ज्यादा नशा करने का नहीं। हाथ में देखो। अपन मर्डर किया है तुम भी ना देते ही दे देगा। कॉलेज बंद हो जाएगा। सुनना मेरी बात। अरे मेरी बात कर सुन। क्या बात सुन? मैंने तेरा साला ऐसे फेंकेगा, दिमाग खराब मत कर। ऐसे फेंकेगा तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। होने दे बर्बाद, अपन प्यार करता है तेरे से। अभी ये सब घर पे बोला तो मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा। कॉलेज में पता चला तो बोलेगी ये लड़की ऐसी है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझे कोई तो जवाब दो। मेरे पास आ, मैं तेरा जवाब दूं। मैं भारतीय दंड संहिता 354D के तहत तुझे ये अधिकार देता हूँ कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री का जबरन पीछा करता है या उससे जबरन संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश करता है तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है। अगर वो पुरुष उस स्त्री के साथ अगर दूसरी दफा जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, अपराध ये फिर से करते पाया जाता है तो उसे 7 साल की कैद और उसी के साथ जुर्माना हो सकता है। इसी के अलावा दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो संशोधन हुआ है उसी में उस उत्पीड़ित स्त्री का बयान सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज कर सकती है। ये बयान उस स्त्री के घर पे भी लिया जा सकता है। जब काली रातें सताएगी भूखी भीड़ डराएगी और घिनौनी नजरें कुछ इर्द गिर्द मंडराएगी।
नहीं, ना तू भाग किसी से, ना तू भाग किसी से, ना तू हार किसी से, ना तू हार किसी से, डर के छोड़ नहीं हूँ संसार किसी से, ना तू भाग किसी से, ना तू हार किसी से, न डर के छोड़ यूं तू संसार किसी से, साथ है तेरे, साथ है तेरे, साथ है तेरे, साथ है तेरे, 354 354 354 354, गैर भी होंगे अपने होंगे, अपने होंगे, अपने होंगे, तेरे अपने सपने होंगे, सपने होंगे, सपने होंगे, बांध कमर क्यों डरती है, घूट घूट क्यों मरती है, बांध कमर क्यों डरती है, घूट घूट क्यों मरती है, अपनी आवाज बुलंद कर, अपनी आवाज बुलंद कर, अपना मान बुलंद कर, अपना मान बुलंद, ये कानूनी बात है, एक नई शुरुआत है, साथ है तेरे, साथ है तेरे, साथ है तेरे, साथ है तेरे, दफा 354 354 354 354 354 354 354 354। And now it's the last team of the competition, the involved team Red. Please know the name of the team is Red. Please be and wait for the formation. First of all, I'd like to thank Thane Law College for giving us this opportunity to perform in front of you all. हमारा स्केट कंज्यूमर्स को कैसे फंसाया जाता है उसके ऊपर दिखाया गया। तो पेश है आपके सामने जागो ग्राहक जागो। 1 2 3 स्टार्ट। विक्रम 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 बेकार 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 विक्रम 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 बेकार 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 विक्रम 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 बेकार 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 बेकार। अरे तू फिर से आ गया, तुम्हारी रोज के सवाल से मैं तंग आ चुका हूँ। लेकिन मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन अगर नहीं अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे मालूम है, अगर मैंने तुम्हारे सवालों का गलत जवाब दिया तो तुम मेरे सिर के 100 टुकड़े कर दोगे। तो बताओ वो कौन है जो सच जानते हुए भी धोखे खा रहा है और जागते हुए भी सो रहा है? जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। और भैया साथी ना चलोगे? नहीं, लेकिन रिक्शा तो खाली है। अरे पर हम खाली हो ना मैडम। क्या? रजिया भाभी, प्रदीप भाई ने भी बिस्लरी की डुप्लीकेट बोतलें मंगाई है, तो दे दो ना, हमारी बात का क्या जाता है? क्या? दीदी जी, ये देखो मेरे नए जूते 4500 रुपए के रीबॉक के यो। रीबॉक की स्पेलिंग बोल। और REEBOK रीबॉक। और यहाँ देख REACOK 450 के होंगे, तेरी तरह डुप्लीकेट। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। E-Bis, 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 E-Bis। हाय हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारी कंपनी में हार्दिक स्वागत है। हमारी कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। हमारी कंपनी में आने के बाद आप सभी के नसीब बदल जाएंगे, आप सभी के खाबों को पंख मिल जाएंगे और पंखों को आसमान। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा? आप सभी को नए ग्राहक लाने होंगे, ग्राहकों की एक नई चेन बनानी होगी। ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से एंड डी को ई से जोड़ना होगा। और इसके बाद आप सभी के पास होगा गाड़ी, बंगला एंड बैंक बैलेंस। आप में से कोई गरीब नहीं रहेगा, ये क्योंकि हम अमीर हो जाएंगे। जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे जागो 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 जागो। हाय ना मम्मी, हम तो चाइना आ गए। चाइना नहीं है रेडी, मुसाफिर खाना बोले तो प्रॉफिट मार्केट। भैया एक अच्छा सा मोबाइल दिखाना। ये देखो एंड्रॉइड फोन एकदम मस्का, सिर्फ 15,000 मैडम। ओ मैडम, 2 दिन का बैटरी लाइफ सिर्फ 13,000 आ रहे हैं। ओ मैडम, ड्यूल से 12,000 मैडम। मैडम, गोरिल्ला ग्लास सिर्फ 10,000 मैडम। ओ मैडम, 13 पिक्सल सिर्फ 6,000 मैडम। अरे मैडम 2 GB रैम सिर्फ 6,000 मैडम। ओ मैडम, एंड्रॉइड छोड़ो, गूगल तो गूगल है, सिर्फ 4,000 मैडम। भैया सिर्फ 4,000। एक मिनट ना भैया, चल सबसे पहले पापा को फोन
मुझे मालूम है अभी इसकी जगह दूसरी मौत आने वाली है। क्या? जाओ रे, जाओ रे, जाओ रे, जाओ रे, जाओ रे, जाओ रे। लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। यो मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। बोले बोले। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया गाया आपने। अगर आपको मनाली को जिताना है तो आपको एसएमएस करने होंगे। एसएमएस का नंबर हमारी स्क्रीन पर है। तो संता, हाँ बोल संता। अरे मैंने एक बात बोलता। हाँ अरे मुझे बता, तुम्हें मनाली पता है? अरे पता है नहीं यार, बहुत ठंडी जगह है जी, बहुत बढ़िया स्पॉट है। स्पॉट नहीं है, मेरी भतीजी मनाली। तुम्हें भतीजी मनाली? लेकिन हम लोग तो दिवाली मनाते हैं। चुप है, वो इंडियन आइडल में सेलेक्ट हो गई है, उसको जिताने के लिए हमें ढेर सारे एसएमएस करने हैं। मैंने कहा ना तो एसएमएस। अरे जरूर करना जी, जरूर करना। अरे चंगा चंगा जो रखता हूँ। एसएमएस 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 एसएमएस। ओए बैलेंस खत्म हो गया जी। ओए मेरा भी। मनाली का इंटरव्यू लाइनअप हो गया है। मनाली नहीं, वो अंधा लड़का कौन है? कौन? सतीश। हाँ, उसका इंटरव्यू लाइनअप कर दो। और मैडम देखो, लोगों को इमोशनल चीजें अच्छी लगती है और वो अंधे को नहीं दिखता, पर मार्केट में वही दिखता। एसएमएस के जो 3 रुपए आते हैं ना, उसमें से 2 रुपए मोबाइल वालों को और 1 रुपया हमें मिलता है। और लोग इमोशनल होकर ही एसएमएस करते हैं। क्या जी? कौन आप? आपके माँ की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। ये कुछ दवाइयाँ लिख के दिए, जल्दी लेंगे। ओके डॉक्टर। डॉक्टर दवाइयाँ। I'm sorry, आपकी माँ को नहीं बचा। लेकिन क्यों डॉक्टर? आप जो दवाई लाए थे वो एक्सपायर्ड थी। लेकिन वो तो मैं आपकी हॉस्पिटल से लाके दिया था। लेकिन एक्सपायरी डेट चेक करना आपका काम है, और शायद वो डुप्लीकेट भी थी। अभी डुप्लीकेट माँ को नहीं ला सकते ना डॉक्टर? I'm sorry। भैया 10 रुपए का रिचार्ज देना। ये लो 11 रुपए। लेकिन इसमें तो 10 लिखा है। लेकिन हम 11 रुपए देते हैं, आपको लेना तो नहीं तो जाओ। हाँ, मुंबई की आबादी 2 करोड़, उसमें से 1.5 करोड़ लोग मोबाइल धारक, उसमें से 1 करोड़ लोग प्रीपेड धारक, उसमें से 60 लाख लोग नॉन रिचार्ज करते हैं। एक रुपए के हिसाब से एक दिन का 60 लाख और 1 महीने का 18 करोड़ और 1 साल का 216 करोड़। ये तो सिर्फ मुंबई का, तो तुम्हें देश का भी क्या होगा? जाओ रे, जाओ रे, जाओ रे, जाओ रे, जाओ रे, जाओ रे। ये 10 रुपए का नोट फटा हुआ है। चलता है बाबा। चॉकलेट के लिए आप नोट छुट्टा तो मुझे। छुट्टा नहीं है बाबा। कोल्ड ड्रिंक के लिए 2 रुपए ज्यादा क्यों लिए? कूलिंग चार्जेस बाबा। टैक्सी में निकलने तो 19 रुपए लिखा है, 20 रुपए के लिए छुट्टा नहीं है बाबा। क्या? बस इसी तरह हमें रोज फंसाया जाता है। नहीं, शायद हम खुद ही फंसते हैं। आप और आप भी। पीछे मत देखिए, मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ, और शायद मेरी। हम हर रोज 1-1 रुपए ज्यादा देते हैं। किस लिए? रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए, चॉकलेट के लिए, यहाँ तक कि दूध की थैली के लिए। 1-1 रुपए ज्यादा करके करोड़ों हो जाते हैं। 1 रुपए ज्यादा मोबाइल रिचार्ज 9.5 करोड़, 1 रुपए ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कूलिंग चार्जेस 200 करोड़, 1 रुपया ज्यादा दूध की थैली 250 करोड़, 1 रुपया ज्यादा छुट्टा नहीं है 1.5 करोड़। ये तो सिर्फ छोटी बातें हुई जनाब, और बड़ी बातें? वाह बेटा, वो मैं ही हूँ, विक्रम। हाँ विक्रम तो हूँ, लेकिन उससे पहले एक सामान्य ग्राहक जो हर बार हर जगह फंसाया जाता है, धोखा खाता है, और कोई इसका प्रतिकार नहीं करता। मैं जा रहा हूँ विक्रम। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने आज मेरे सारे सवालों का सही जवाब दिया। इस देश के कानून ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, जिसके अंदर कोई भी ग्राहक कंज्यूमर फोरम के पास जा सकता है किसी भी दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने के लिए। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। जा रहा हूँ। ये बेकार तो चला गया, क्योंकि मैंने इसके सारे सवालों का सही जवाब दे दिया है। लेकिन ग्राहकों, आप सबके सामने भी कई सारे सवाल है। ग्राहक